Multi-baggers. All of us, we want multi-baggers. Some of the biggest investors have reached to the top because they have found multi-baggers. Multi-baggers वो investments होती हैं जो आपको double the return देती हैं, double or even more than double the return देती हैं. वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, विजय केडिया, राकेश झुंझुनवाला, किसी को भी ले लो, टेक एनी इन्वेस्टर अंडर दिस सन, दे आर फेमस बिकॉज दे हैव फाउंड देयर ओन multi-bagger. Now, I found my multi-bagger in 2013 and today in this video I'm going to tell you everything you need to know about finding multi-baggers. Now, before starting this video, इधर आओ. ये वीडियो ना मजाक नहीं होने वाला है. हो सकता है इस वीडियो में I'm going to use rude language. हो सकता है I'm going to be very, very real with you. उसका अगर offend हो रहे हो तो I'm sorry, you can close this video and watch this video later. When you're watching this video, and this video is going to be so powerful that this video will change your perspective. It will give you the right direction to invest in stock markets, give you the right direction to go for multi-baggers. This video is very powerful. Trust me when I tell you this. Give me this 1 hour. ये 1 घंटा मुझे दे दो. Put your entire focus here. Put headphones on and don't let this session be. ये session बहुत powerful होने वाला है. The value you're going to get is going to completely change your mind. And I can guarantee after watching the entire session, तुम खुद दोस्त comment section में लिखोगे that Harsh, this was an amazing session. So if you're ready and if you're ready to give me your time, because जो भी कर रहे हो छोड़ दो उसे, 1 घंटा मुझे दे दो. Let's get started. Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And today I'm going to tell you about multi-baggers. Yes! You know, when I started my channel, I made a video on multi-baggers which as of now got about 17,000 views, जो actually मेरे channel के हिसाब से काफी decent है. And I see that people keep asking me, Harsh, please tell me about multi-baggers, 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 multi-baggers. So today, my friend, let's discuss about multi-baggers. Now, let me share the PPT with you. Okay, सबसे पहला आज हम करेंगे क्या क्या? Again, this is going to be a long session. Long session होगा. Put your headphones on. Give me your entire attention. जो भी कर रहे हो ना, सब बंद कर दो. 1 घंटा दे दो. Trust me, you'll thank me for this. ठीक है, करेंगे क्या? सबसे पहला, I'm going to explain you what is multi-bagger. Second, I'm going to explain you the characteristics of a multi-bagger. Third, मैं आपको बताऊंगा previous multi-baggers कौन से रहे हैं, which have been the previous multi-baggers, and we are going to study them and हम उनको analyze भी करेंगे. उसके बाद I'm going to tell you how to choose the upcoming sectors, how to choose the multi-baggers. Then I'm going to tell you the reality check. भाई साहब असली में शेयर कैसे ढूंढा जाता है, reality की बात करते हैं. उसके बाद I'm even going to give you a case study of Rakesh Jhunjhunwala of how he found his multi-bagger in Titan. Right? I'm taking him as a case study. We always take case studies. I'm taking him as a case study because I'm sure most of you must have heard about him. ठीक है, शुरू करें. Attention सारी इधर याद रखना. Let's go. What is multi-bagger? सबसे पहला, multi-baggers are those investments that give you several times the returns. ठीक है, so multi-baggers अगर इसको और simple करें, multi-baggers are those investments that give you double or more the returns. So if you get double, it's a multi-bagger. If you get 10 times the returns, तो क्या हो गया? तो 10 time bagger हो गया. ठीक. Now what is the time frame? Time frame कुछ fix नहीं है. कुछ investors 10 साल, 12 साल, 20 साल में ढूंढते हैं. Some people even find it in 4 to 5 years. That depends on you. So generally nowadays multi-bagger is said कि अगर multi-bagger ढूंढना तो you need 4 to 5 years. But it can be any time frame. फैक्टर हमें उससे नहीं है कि हम कितना टाइम मार्केट में स्पेंड कर रहे हैं, फैक्टर ये हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं. राइट, दैट इज व्हाट अ ट्रू मल्टी-बैगर इज. उसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मल्टी-बैगर. नाउ अंडरस्टैंड दिस. जो मल्टी-बैगर इन्वेस्टमेंट होती है ना, हर बड़े इन्वेस्टर के पास एटलीस्ट 2-3 मल्टी-बैगर्स तो होते ही होते हैं. दैट इज व्हाई ही रीचेस दैट लेवल. सबसे पहला, they are long-term investments. Multi-baggers are not trades. They are not intraday trades. Multi-baggers are long-term investments. Again, am I saying intraday trades are bad? Am I saying positional swing trading is bad? बिल्कुल भी नहीं. What I am saying today, I'm not going to talk about them. Today, I'm going to only be talking about multi-baggers. और multi-baggers क्या होती हैं? आपकी long-term investments. उसके बाद multi-bagger, they are not trades. Clear? Study used in multi-bagger is fundamental analysis. The study we use in multi-bagger is not technical analysis, it is fundamental analysis. To find a multi-bagger, what is the study you need? Fundamental analysis. ठीक है? आगे बढ़ते हैं.
Now, let us look at the previous multi-baggers. Now, I want to show you the multi-baggers from 2010 to 2020. I want you to analyze the multi-baggers of the past previous 10 years. ठीक है, 10 एक जो हमारे पास डेकेड के पिछले 10 साल के multi-baggers देखें, सिंपल करते हैं. Now, I have collected a list for you. This is the list of the previous past multi-baggers from 2010 to 2020. देखो. I'm waiting for 10-15 seconds. Just read it carefully. You'll find Bajaj Finance, the biggest multi-bagger, which 10 years ago it was 32 rupees. Now it is 4,253 rupees, and it has given 13,178% return. Multi-bagger. Eicher Motors. 10 years ago it was 655. Now it is 22,239, and it has given a return of 3,294%. Bajaj Finserv, Page Industries, Britannia, Titan Company. Titan Company I'm going to use as an example, by the way. So hold for that. Again, watch this till the very end, वरना point सब खत्म हो जाएगा. सारा फोकस तुम्हारा मुझे इधर चाहिए. ठीक? Okay. Pidilite, Havells, सब देखो. अच्छे से देखो. Now, what do you see? यहां पे आप देखोगे that there are several sectors involved. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर के ही है. There are several sectors involved. These are the multi-baggers, the biggest multi-baggers of the past 10 years. The biggest multi-baggers. Now, you tell me which sectors would be the upcoming multi-baggers. कौन से होंगे? Which sectors would be the upcoming multi-baggers? बताओ, सोचो. See the previous multi-baggers. You will find NBFCs. You will find automobile. You will find then there is Havells, the Info Edge, जो पूरे इंटरनेट की है. There's MRF. There's tires. There's banks. There's Shree Cement. There's Asian Paints. Right now, you tell me what sectors according to you will be good in the next 10 years. कौन से sectors multi-baggers होंगे? सोचो. It can be paints, infrastructure, insurance, because I personally feel insurance has a major scope, automobile, banking. ऐसा कोई सेक्टर है जो आप बोलोगे ये मल्टी-बैगर सेक्टर नहीं होगा? सारे होंगे. So रूल क्या है? It's easy. How to find the sector which is going to do well? बहुत आसान है. You just need common sense. अगले 10 सालों में कौन सी कंपनी अच्छा करेगी? अगले 10 सालों में कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से अच्छा करेगा? It's just common sense. Simple. इसमें कोई चैलेंज नहीं है, right? बट क्या हम तभी भी कर रहे हैं? नहीं. लेट मी टेल यू द ग्रैंडफादर स्टोरी. अब मैं पीपीटी हटाता हूं. अब आप देखोगे हम सबके घर में वी टॉक अबाउट दिस. अरे आई विश माई ग्रैंडफादर हैड इन्वेस्टेड देयर. लुक वेयर वी वुड हैव बीन. आई विश ही डिड नॉट सेल दैट. उन्होंने, मेरे बाबा ने वो बेचा नहीं होता, वो खरीदा नहीं होता, वो नहीं किया होता. देखो आज हम किधर होते. होती है कि नहीं होती है? आई नो होती है. Now, if you think logically, our grandparents, our parents, they knew that internet, technology is the future. Did they invest in it? Nahi. Standing here today, you know, renewable energy, insurance, this is the future. Electrical vehicles, this is the future. Are you investing in it? Nahi. दोस्त, अगर if you want to find a multi-bagger ना, सबसे पहले दिमाग में एक स्टोरी बांध दो और इस रूल को बांध लेना. Is that if your grandchildren say that I wish my grandmother or my grandfather bought that thing or did not sell that thing or did that, look where would have been, it would be a very sad day. Don't give your grandchildren an opportunity to say this, that you missed an opportunity. अब इसके आगे बात करते हैं हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर. बोलोगे हर्ष चलो ठीक है ये तो समझ आ गया, बट मल्टीबैगर ढूंढे कैसे हैं? आप मुझे सिस्टम बताओ, मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मल्टीबैगर्स कैसे ढूंढने. दोस्त, read what I've written here. Several ways to find multi-baggers is already available on the internet for free. PPT देखो. Several ways to find multi-baggers is already available on the internet for free. आप multi-baggers YouTube में सर्च करो, आप ब्लॉग सर्च करो, you will find a list on how to find multi-baggers. You will find several theories, you will find several information. You read books, talk to investors, you see investor interviews. आपको 50 चीजें मिल जाएंगी. Let me अब PPT बंद करता हूं मैं. अब let's have another real talk.
इंफॉर्मेशन आपके पास अबंडेंस में अवेलेबल है, अबंडेंस में, बट इंफॉर्मेशन से कुछ फायदा होता है? बिल्कुल भी नहीं। इंफॉर्मेशन तो सबको ये भी पता है दैट टू लिव अ हेल्दी लाइफ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू एक्सरसाइज, यू नीड टू स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट मोड, राइट? आसान है, बट क्या तभी भी लोग हेल्दी हैं? नहीं। मल्टी बैगर्स में इंफॉर्मेशन भरी हुई है आपके पास, भरी हुई है। यू गूगल मल्टी बैगर, यू विल फाइंड सो मेनी वेज टू फाइंड मल्टी बैगर, इंफॉर्मेशन भरी हुई है। हैव यू फाउंड योर मल्टी बैगर? यू हैव नॉट, वरना ये वीडियो नहीं देख रहे होते आप। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ। तो ये मान लो, इंफॉर्मेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इंफॉर्मेशन अच्छी, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन ऑल्सो इज अवेलेबल टू यू फॉर फ्री, बट दैट विल नेवर इफेक्ट यू, दैट विल नेवर हेल्प यू। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मी, व्हाट सिस्टम डू आई यूज? सो यू मे आस्क मी, हर्ष तुम कौन सा सिस्टम यूज करते हो यार टू फाइंड मल्टी बैगर्स? My system, that is only for my students, and that is only, when I say my students who are enrolled in my paid program. और क्या मैं उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन देता हूं? नहीं, मैं एक उनका मेंटर हूं। आई गाइड देम, आई हैंड होल्ड देम पर्सनली हाउ टू डू इट, हाउ टू फाइंड इट। और जो मैं आपको आज बताने वाला हूं ना, ये मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर करता हूं, बट मैं आपको आज थोड़ा सा टॉपिक बताने वाला हूं। व्हाई? बिकॉज माई टीम रियली फोर्स दैट हर्ष, मल्टी बैगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पीपल आर फाइंडिंग, पीपल वांट टू नो अबाउट इट, और अब बहुत यूट्यूब में आपके कमेंट्स आए हैं, इसलिए आई एम ओनली शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। आई ओनली शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद माई स्टूडेंट्स। मैं अपने सिर्फ स्टूडेंट्स की केस स्टडीज है जो आपको दे रहा हूं, बट इसका बहुत छोटा सा ही पार्ट है, और सिर्फ इसलिए दे रहा हूं बिकॉज देयर इज हाई डिमांड ऑफ इट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डू नॉट स्किप दिस सेशन। अब लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। अभी तक हमने क्या किया है? इंडेक्स हमने वो देखा था क्या क्या करेंगे, उसके बाद व्हाट आर मल्टी बैगर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टी बैगर्स, वी सॉ द प्रीवियस मल्टी बैगर्स ऑफ द प्रीवियस बेस्ट मल्टी बैगर्स ऑफ द पास्ट 10 years फ्रॉम 2010 टू 2020। अब दोस्त, मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं। सिस्टम तो आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आपको सिस्टम लेना है, आप सिस्टम ढूंढ लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन अबंडेंस में अवेलेबल है, ढूंढ लो, जो भी आपको ठीक लगे यूज कर लो। अब मैं आपको रियलिटी चेक देता हूं, पीपीटी देखो, रियलिटी बताता हूं। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो इफ यू आर अ इन्वेस्टर ऑलरेडी, तब आप समझोगे। एंड इफ यू आर नॉट इन्वेस्टर, हो सकता है यू माइट टॉक कि हर्ष यार क्या बोल रहे हो, ये क्या है ये सब, बट ट्रस्ट मी दोस्त, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी। ये मैं आपको 3 रूल्स बताने वाला हूं, हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर। इनको बांध लेना, क्योंकि ये ही सच है। रियलिटी चेक नंबर 1, multi-bagger stocks do not mean penny stocks or small companies. ये सबसे बड़ा मिथ है। आई डोंट नो व्हाई, एंड बिकॉज इंडियंस हैं, तो व्हेनेवर आई टॉक टू समवन कि यार कोई मुझसे पूछता है हर्ष आई वांट टू बाय मल्टी बैगर, मैं क्या लूं, मुझे मल्टी बैगर देखना है, बताओ वो लोग मुझे क्या बोलेंगे? उसके लिए तो सर स्मॉल कंपनी देखेंगे ना, उसके लिए तो वी हैव टू बाय अ स्टॉक जैसे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, ये प्राइस होगी, मुझे स्मॉल फंडामेंटली वीक कंपनी चाहिए मल्टी बैगर। ये सबसे बड़ा मिथ है। एक काम करो, दोबारा वो लिस्ट देखो, वीडियो को रिवाइंड करो एंड सी द लिस्ट अगेन। उसमें आपको कौन सा पेनी स्टॉक दिख रहा है जो मल्टी बैगर बना है? एंड आई एम टॉकिंग फैक्ट्स, मैं इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग फैक्ट्स। विच पेनी स्टॉक डू यू थिंक हैज बिकम अ मल्टी बैगर? कोई नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेनी स्टॉक बिकमिंग अ मल्टी बैगर इज 1 out of 100। क्या उस पर अपने बेट्स प्लेस करोगे क्या? नहीं। लोगों ने बोला था, पीपल सेड दैट एप्पल बिकेम अ $1 trillion कंपनी, अब कुछ फायदा नहीं है, इट्स अ $2 trillion कंपनी नाउ। MRF, it was the most expensive share in our exchange for the past 10 years, and still you see its returns. It's a multi-bagger. Reliance Industries has been a multi-bagger for the past 3-4 years itself. तो ये जो मिथ है आपके दिमाग में that only penny stocks are multi-baggers, इसको भाई इसकी पोटली बांधो और फेंको खिड़की के बाहर। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देखना, जिसमें मैंने आपको ढंग से समझाया है दैट व्हाई यू शुड नेवर इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स, एंड आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू लॉजिकली एंड मैथमेटिकली। उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देखना। सबसे पहला रूल क्या है? मल्टी बैगर्स डू नॉट मीन इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू गोइंग टू फाइंड अ मल्टी बैगर और आप तुच्ची कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो वो नहीं है भाई साहब। और दूसरी चीज, आप बोलोगे हर्ष अब बजाज फाइनेंस, ठीक है, वो तो 32 रुपीज का शेयर था 10 साल पहले, तो वो तो पेनी स्टॉक हुआ। बड़ी पहले ना और आज में पेनी स्टॉक की एक तो डेफिनेशन में, क्योंकि प्राइस बहुत डिफरेंट आ गया है। पहले यू विल सी 10 years ago ब्लू चिप स्टॉक्स यूज्ड टू बी 400, 500, 600। अब सारे ब्लू चिप स्टॉक्स जनरली आर अबव 1000 रुपीज, अगर उनपे स्प्लिट्स या बोनसेस नहीं हुए हैं तो। यू हैव टू फाइंड अ कंपनी which has good fundamentals and good management. If you are just taking any random company thinking multi-bagger बन जाएगा, दोस्त स्टॉक मार्केट्स छोड़ दो, एटलीस्ट स्टॉप फाइंडिंग अ मल्टी-बैगर, वो नहीं हो पाएगा।
रियलिटी चेक नंबर 1, एंड अगेन दिस, ये उनको समझ आएगा जो मार्केट्स में है. आई कैन टेल यू दिस बिकॉज आई हैव बीन इन मार्केट्स. जो मैं बता रहा हूं, आई हैव वॉक्ड दैट टॉक. मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी रुको, अभी तो बहुत आने वाला है. रियलिटी चेक नंबर 1. नाउ द रियलिटी चेक नंबर 2. पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. You do not need the skill of fundamental analysis to find multi-baggers. You do not need the skill to find. You do not need the skill of fundamental analysis to find multi-baggers. ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं. क्यों? अगर फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए होती तो हर बीकॉम ग्रेजुएट मल्टीबैगर नहीं ढूंढ लेता, हर एमबीए मल्टीबैगर नहीं ढूंढ लेता, हर हार्वर्ड का एमबीए तो मल्टीबैगर ढूंढ सकता था ना. Why haven't they found it? Why don't you see that the top investors are from Harvard or from the Ivy League colleges? I'm not saying anything against them. I'm saying you don't need the skill of fundamental analysis. Let me explain logically why am I saying this. ठीक है, इसको भी समझते हैं. अब यहां देखो, when you want to find मल्टीबैगर ढूंढने की जर्नी क्या होती है. सबसे पहला, 10% of your efforts will go in buying a stock. 10% of your efforts will go in selling a stock. 80% effort आपका किस चीज में है आपको पता है? 80% effort is for you to hold the stock. हम क्या है, ये 10% के पीछे ही भागते रहते हैं. ये 10% क्या है, ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो, ट्रिक. कोई ट्रिक नहीं है. You only need 10% effort to find a good company and sector. उसके लिए आपको क्या चीजें आपको पता है? आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो. इफ यू इन्वेस्टिंग फॉर 10 years, all you need is कॉमन सेंस. आप पिछले 10 साल से देख लो या पिछले 3 साल में देख लो, ऑलमोस्ट एवरी ब्लू चिप कंपनी हैज बिकम अ मल्टीबैगर टुडे. क्या चाहिए था? कॉमन सेंस, दैट्स इट. So you only need 10% effort for this. So even if you don't do this 10% effort, that's okay. मैं चाहता हूं कि you focus on the main thing. I want you to focus on this 80% effort जिसमें चाहिए, उस पे focus करो. Coming back, the reality check number 2. Multi-bagger stocks do not require the skills of fundamental analysis. ये बहुत बड़ा myth है. Multi-bagger stocks require you the skill to hold those stocks. अभी मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या बात कर रहा हूं. अब बात करते हैं रियलिटी चेक नंबर 3 पे. रियलिटी चेक नंबर 3 है, इज मल्टीबैगर्स आर क्रिएटेड नॉट फाउंड. मल्टीबैगर्स आर क्रिएटेड नॉट फाउंड. ये बहुत डीप स्टेटमेंट है, इसको ढंग से समझो. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दैट बडी, टू फाइंड अ मल्टीबैगर यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी अ मल्टीबैगर योरसेल्फ. तुम्हें खुद मल्टीबैगर बनना पड़ेगा, तभी जाके मल्टीबैगर ढूंढ पाओगे, वरना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. इसको और समझाता हूं. अब लेट मी क्लोज दिस. एक बार मैं पीपीटी बंद कर देता हूं. ठीक है, अब मुझे बताओ, इफ यू हैव ऑलरेडी बीन इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स, योर सेवरल इन्वेस्टमेंट्स, आप खुद बोलोगे अपने पोर्टफोलियो, आप देखोगे कि आपने जिन इन्वेस्टमेंट्स में पहले इन्वेस्ट किया था वो आज मल्टीबैगर्स है कि नहीं? अगर है ना, तो वीडियो को अभी पॉज करो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, सो दैट जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है वो भी समझे, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है वो भी समझे. खुद देखो एक बार, जस्ट थिंक क्लियरली. मल्टीबैगर के लिए व्हाट आर द 80% एफर्ट्स यू नीड? 80% एफर्ट्स इज इन होल्डिंग. होल्ड कैसे करोगे? फंडामेंटली गुड स्टॉक्स आपने भी पहले खरीदे हैं. जो स्टॉक्स मल्टीबैगर हुए हैं ना, वो आपने भी खरीदे हैं. आई कैन बेट इट फॉर अ फैक्ट, बट यू हैवंट होल्ड देम, यू हैवंट हेल्ड देम. आप हमने ट्रेड किया, ₹2 प्रॉफिट लिया और हम बाय बाय करके कट लिया वहां से, राइट? क्यों? बिकॉज 80% एफर्ट है होल्डिंग पे. होल्ड, उसको होल्ड करना बहुत जरूरी है, टू होल्ड दैट स्टॉक. अब लोग बोलते हैं, अब मैं लोगों से पूछता हूं, अच्छा व्हाट डू यू थिंक वी नीड फॉर होल्डिंग द स्टॉक? क्या चाहिए? लोग बोलते हैं पेशेंस. हर्ष, वी नीड कन्विक्शन. सीरियसली, अब मैं आपको स्टोरी बताता हूं. 2 फ्रेंड्स थे, राम और श्याम. देयर वाज राम, देयर वाज श्याम. श्याम ना, ही यूज्ड टू ड्रिंक, तो हर रात ही यूज्ड टू ड्रिंक लिकर, वो दारू पीता था. अब राम एक दिन श्याम के पास गया और राम ने बोला, अरे श्याम, तेरे को पता है तूने जितना खर्चा दारू में किया है, लाइफ लॉन्ग तू 60 लाख रुपए बचा लेता. 60 लाख. You could have saved 60 lakh rupees and you could have bought your own Mercedes with it. Shyam, what the hell are you doing? Why are you spending so much on liquor? Right? You know what Shyam replied to Ram? हाँ यार, वैसे you तो don't drink ना? Ram said, I don't drink. तो where is your Mercedes?
दूसरों को एडवाइस देना बहुत आसान है, पेशेंस, कन्विक्शन, ये बोलना बहुत आसान है. नाउ लेट मी टेल यू इन रियलिटी व्हाट डज इट टेक फ्रॉम यू. तुम्हारा खून खत्म हो जाएगा, मतलब भगवान से भरोसा उठ जाएगा, लॉजिक जाएगा खिड़की के बाहर. और जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, मैं तभी भी उसको उतना एक्सपेक्ट, जितना एक्चुअल में है ना, मैं उस लेवल तक मैं बोल भी नहीं पाऊंगा जिस लेवल पे एक्चुअली पेन होता है. नाउ यू थिंक अच्छा अब होल्ड करना है हर्ष, हाँ राइट है कि वी नीड पेशेंस, वी नीड कन्विक्शन, हमें स्टॉक में, अरे यार ठीक है वो तो इन्फॉर्मेशन है ना. अब मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ व्हाट डू यू नीड. ठीक है, अगर रियलिटी में यू वांट टू अंडरस्टैंड द जर्नी ना, लेट मी शो यू दिस. सबसे पहला, यू नीड टू चूज अ गुड स्टॉक. ठीक है, गुड स्टॉक. उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंपनी. राइट, हैंडराइटिंग खराब है बट बात में फोकस करो. उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंपनी. उसके बाद यू नीड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस, कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है. ठीक है, उसके बाद यू नीड टू डू कंटिन्यूअस रिसर्च, कंटिन्यूअस रिसर्च इन दैट कंपनी. कंटिन्यूअस रिसर्च के बाद यू नीड टू मेक श्योर, फिर होगा क्या, जब इतना स्टडी करोगे ना, यू विल स्टार्ट डेवलपिंग कन्विक्शन. जब कन्विक्शन डेवलप करोगे, फिर उसके दोबारा यू हैव टू ट्रैक द परफॉर्मेंस. उसके बाद यू विल स्टार्ट डेवलपिंग फेथ. आपका जो फेथ है कंपनी में वो आना बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. यू विल स्टार्ट डेवलपिंग फेथ. उसके बाद शायद अगर आप यहां तक पहुंच गए, देन यू विल गेट पेशेंस. ये होता है. नाउ इसको मैं और भी बेटर समझाता हूं. लेट मी एक्सप्लेन इट इवन बेटर टू यू. लेट मी गिव यू द केस स्टडी ऑफ राकेश झुंझुनवाला. आई होप आप सब पीपीटी देख रहे हो, राइट. राकेश झुंझुनवाला. नाउ व्हाई एम आई टेकिंग हिज केस स्टडी, बिकॉज राकेश झुंझुनवाला इज समवन जो बहुत नोन है, रिनाउंड है. ठीक है, एंड एंड दैट इज वाई देखोगे राकेश झुंझुनवाला की वन ऑफ हिज बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स वाज इन्वेस्टमेंट इन टाइटन कंपनी लिमिटेड. अब लेट्स प्रॉपरली एनालाइज दिस केस स्टडी. बेस्ट तरीका क्या है ना दोस्त, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखो. दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न. अब राकेश झुंझुनवाला स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट इन 2002-2003. ठीक है, इन टाइटन कंपनी. Then his average buying price was 3 rupees a share. So when he started buying in 2002-2003, he was not buying at 3 rupees. But करते 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 bonus हुआ, split हुआ, उनकी average buying price कितनी आ गई? 3 rupees. So you can assume that his buying price was 3 rupees. And the current market price of Titan Company Limited is 1,519 rupees. 1,519 rupees, from 3 rupees to 1,519 rupees. That is why Rakesh Jhunjhunwala is one of the best investors in our country. No matter you must have seen Scam 1992. आप जो सोचना है सोचो, मैं उसमें भी बात करेंगे, अभी उस पर भी बात करेंगे, चिंता मत करो. ठीक है, ये है. अब हम पीपीटी बंद करता हूं. नाउ व्हेन मैं आपको उनकी केस स्टडी बताऊंगा, आई एम गोइंग टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप. आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक अरे ये करना चाहिए था, अरे वो करना चाहिए था, अरे वो क्यों नहीं करता, वो मत सोचो. आई वॉन्ट यू टू बी इन राकेश झुंझुनवाला सिचुएशन. आई वॉन्ट यू टू स्टेप इन माई शूज ऑफ एन इन्वेस्टर एंड देन फील. आई वॉन्ट यू टू फील द इमोशंस आई एम फीलिंग. जो होल्डिंग का पार्ट आपको समझा रहा था ना, मैं आपको बताता हूँ होल्डिंग का पार्ट होता क्या है. जस्ट फील व्हाट आई एम फीलिंग. एक बार मेरी सिचुएशन में आ जाओ, कि राकेश झुंझुनवाला की सिचुएशन में आ जाओ, कि यू आर पुटिंग योर हार्ड अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट्स एंड आपका मेन इनकम से स्टॉक मार्केट्स है, हर चीज स्टॉक मार्केट्स है. अब बात करते हैं, और जस्ट इमेजिन आपने खुद का पैसा इन्वेस्ट किया, उस पिक्चर में आओ, तब यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, नाउ दिस अगेन शोइंग यू द पीपीटी अगेन. Now this is the graph of Titan Company Limited, right? Since 2010. So host the graph through a clear now. So as you can see from here, December 2010 से प्राइस क्या थी और अब December 2020 में प्राइस क्या है. You can see कहाँ तक कहाँ गया. And he has held it all this while. पूरे टाइम रोका है. क्या हम इसको होल्ड कर पाते? नहीं. अब when Rakesh Jhunjhunwala invested in Titan Company, was he the only one who invested in Titan Company? नहीं. उनके साथ लाखों और ने किया होगा. But difference क्या था? All of them sold. हम 1-2 रुपए के प्रॉफिट में शेयर भाई बेच के बाय बाय. ही डिड नॉट सेल इट. दैट इज द डिफरेंस. अब इसको और डिटेल में समझें. अब मैं इसको और डिटेल में बताता हूं. मैंने आपके पूरा होमवर्क करके रखा है. मैंने यहां पे पूरी आपकी उसकी प्राइसेस ले रखी हैं. लेट मी ओपन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, खुद देखो. ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, आई डोंट लाइक द रेड कलर, आई वांट टू टेक ब्लू.
he started investing in Titan. In 2002, the price was 3 rupees. In 2003, the price was 2 rupees. ये क्या हुआ? Just imagine, सीधा 33% डाउन. आपने एक्सेल इन्वेस्ट किया, 33% डाउन. आपकी क्या इमोशनल हालत होगी? आप बोलोगे अरे यार मर गए. Then in 2004, the price went up to 4 rupees. ये क्या हुआ? अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपए से 4 रुपए, सीधा 100% प्रॉफिट हो गया. 100% प्रॉफिट. इतने में हम क्या करते हैं? अरे अरे हम तो 100% प्रॉफिट छोड़ो, जैसे 50 पैसे ऊपर जाता है हम तो सीधा बेच देते हैं. अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस टू यू, आई एम सेइंग कि हमारा इमोशनल बायस है. स्टॉक मार्केट्स में जनता पैसे नहीं कमाती. स्टॉक मार्केट्स में कभी भी जनता कोई मल्टी बैगर हिट कर ही नहीं सकती. व्हाई? बिकॉज सबको लगता है कि यू नीड फंडामेंटल एनालिसिस. सबको लगता है यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम, यू नीड इंफॉर्मेशन टनों के उसमें अवेलेबल है एंड गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री. बट व्हाट यू नीड इज इमोशनल बैलेंस. जस्ट इमेजिन, 3 रुपए से 2 रुपए, ही वाज स्टिल होल्डिंग टू इट. अगले साल 2 रुपए से 4 रुपए, तभी भी नहीं बेचा. उसके बाद ठीक है, 2005, 45 rupees. From 4 rupees it went to 45 rupees. He did not sell. 2006, from 45 rupees it went to 22 rupees. Just imagine this fall, 45 to 22. He still did not sell. Then 2009, 33 rupees. Then 2011, how much? 240 rupees. 33 से 240 rupees. He still did not sell. फिर 2012 was 314 rupees. 2015 450 rupees. उसने बेचा नहीं. राकेश झुंझुनवाला, मैं बार बार उनको उसने बोला, आई डोंट नीड टू डिसरिस्पेक्ट हिम बाय एनी मींस. आई वांट यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, राकेश झुंझुनवाला डिड नॉट सेल. ही केप्ट ऑन होल्डिंग. कैन यू इमेजिन व्हाट गट यू नीड? इस टाइम पे ना भगवान से भरोसा उठ जाएगा तुम्हारा. दिमाग खराब हो जाता है. मतलब ये तो हार्ट अटैक वाली सिचुएशन है. 2 रुपए ऊपर, मतलब स्टॉक मार्केट 50% डाउन, देन 70%, 50% अप, 70% डाउन, 200% अप, 40% डाउन. हार्ट अटैक आ जाए किसी आदमी को. दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड अ मल्टी बैगर. ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं. ये आपको वही बता पाएगा जिसने स्टॉक मार्केट्स में खुद इन्वेस्ट किया है, जो मार्केट्स में खुद रहा है. आई डोंट गिव इंफॉर्मेशन. मैं आपको वो बताऊंगा जिससे यू ट्रांसफॉर्म, यू अंडरस्टैंड व्हाट इन रियलिटी इट मीन्स. इंफॉर्मेशन ब्यूटिफुल लगती है, रियलिटी में ये मतलब होता है. अभी और समझते हैं. देन इन 2016 इट वेंट टू 290 rupees. फ्रॉम 450 rupees to 290 rupees. जंप. ही स्टिल डिड नॉट सेल. कैन यू इमेजिन? इमेजिन करो दोस्त, हार्ट में क्या फील होगा. इमेजिन करो क्या चाहिए. You need to meditate to live in stock markets. You need to meditate to survive in stock markets. Stock markets ना किसी weak hearted आदमी का गेम ही नहीं है. ये बोलना बहुत सारा अच्छा है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट एक्चुअली किसी weak hearted आदमी का स्टॉक मार्केट्स गेम ही नहीं है. The emotional gut you need to be in stock markets is unbelievable. Moving forward, then in 2017, the 2018, I have 2018, it went up to 1,000 rupees. 1,000 rupees, 4 digit, पहली बार. He still did not sell. Then in 2019 it went to 1,400 rupees, and in 2020 the last price which I saw was 1,520 rupees. 1,520 rupees. क्या आप ये होल्ड कर सकते हो? अगर आप ये होल्ड करने की हिम्मत रखते हो, अगर आप में इतना दम है कुछ होल्ड करने का, तो आप मल्टी बैगर आपको मिलेगा ही मिलेगा. पिछले 10 सालों में देख लो, ऐसा कौन सा स्टॉक है जो मल्टी बैगर नहीं है. जब राकेश झुंझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, व्हेन इन टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था, लाखों लोगों ने उनके साथ इन्वेस्ट किया था, बट उनका मल्टी बैगर क्यों नहीं होता है? आपने भी, इफ यू सी द प्रीवियस लिस्ट ऑफ ऑल द मल्टी बैगर्स ऑफ द पास्ट 10 years, आप खुद देखोगे, यू हैव ट्रेडेड दो स्टॉक्स, यू हैव बॉट दो स्टॉक्स जो मल्टी बैगर है, बट आपके पास वो स्टॉक्स अभी क्यों नहीं है? आपने वो स्टॉक्स होल्ड क्यों नहीं किए? बिकॉज यू नीड एन इमोशनल बैलेंस. ये आसान नहीं होता. ये बोलना बहुत आसान है, पेशेंस रखो, भगवान में भरोसा. भाई साहब सब खत्म हो जाएगा. अगेन ये रैंट नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं जो आपको कोई बताएगा नहीं. ये है रियलिटी. कैन यू इमेजिन द इमोशनल टॉर्मेंट दिस पर्सन हैड टू गो थ्रू? नाउ लेट मी क्लोज द विंडो. नाउ पीपल टेल मी, मैंने आई थिंक वीडियो बनाई थी राकेश झुंझुनवाला पे, एंड समबडी वाज डिसिंग मी ऑन द इंटरव्यू. मैंने बनाई थी और मुझे बहुत कमेंट्स आए, हर्ष अरे यार ये तो चेला है राकेश झुंझुनवाला का, राकेश झुंझुनवाला इज अ फ्रॉड. बडी हाउ कैन यू से दिस? इफ एन इन्वेस्टर हैज रीच दैट लेवल, उसके पास ये इमोशनल बैलेंस है, उसके पास ये इमोशनल घट है, उसमें दम है बॉस, इसलिए वो उस लेवल तक पहुंचा है. मुझे नहीं पता इफ इज डन रॉन्ग राइट, बट आई रिस्पेक्ट हिम.
आई रिस्पेक्ट एवरी इन्वेस्टर हु हैज फाउंड अ मल्टीबैगर बिकॉज इट इज नॉट ईजी. ये रियलिटी है. एंड इफ यू वांट टू फाइंड अ मल्टीबैगर यू नीड टू बिल्ड दैट इमोशनल गट. इंफॉर्मेशन पे मत जाना जिंदगी भर तक, कुछ नहीं होने वाला उससे. अगेन हो सकता है मैं बहुत अग्रेसिव हो रहा हूं, बट ये सच मैं आपको बता रहा हूं. ये आपको सच वही बता पाएगा जो स्टॉक मार्केट्स में खुद रहा है. जब मेरा शुगर सेक्टर मल्टीबैगर था 2013, मैं आपको बता भी नहीं सकता मेरी क्या हालत थी. मैं आपको बता भी नहीं सकता. बट विद टाइम वो बिल्ड होता रहेगा. अभी भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत बार वो घबरा जाते हैं. दे नीड टू बी मेंटर्ड. इसलिए आपको कोई स्टॉक मार्केट सिखा नहीं सकता. नोबडी कैन टीच यू स्टॉक मार्केट्स. यू हैव टू बी रिमाइंडेड एंड यू हैव टू बी मेंटर्ड 24/7. अब मेरी बात सुनो. जैसे आई गिव एन एग्जांपल. मेरे डैड, उनको डायबिटीज है. माय डैड वेंट टू डॉक्टर. 2-3 साल पुरानी बात है. डॉक्टर ने लिख दिया कि अच्छा चाहिए, ये लो और ये रहा प्रिस्क्रिप्शन दे दी मेरे डैड को. अब मेरे डैड वो प्रिस्क्रिप्शन लेके चले गए केमिस्ट के पास. मेरे डैड ने बोला यार ये सारी दवाइयाँ दे दो. बट द केमिस्ट गिव अच्छा ये दवाई ओके, ये दवाई ओके, ये दवाई ओके. फिर माय डैड आस्क्ड कि अच्छा ये लिखा है, ये दवाई नहीं दी. बताओ व्हाट डिड द केमिस्ट से? अरे सर इसमें लिखा है दैट यू नीड टू वॉक 30 मिनट्स एवरी डे. तो ये मैं थोड़ी बताऊंगा. स्टॉक मार्केट्स में अगर मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दूं ना, बी पेशेंट, खुश रहोगे, ये लो, क्या कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला. दैट इज वाई वी हैव मेड अ मेंटरशिप प्रोग्राम. आई डोंट गिव अ प्रिस्क्रिप्शन पैड टू माई स्टूडेंट्स. आई होल्ड देयर हैंड एंड आई मेक श्योर दे वॉक. एक अच्छा डॉक्टर वो होता अगर मेरे डैड को, मेरा डैड हाथ पकड़ के ले जाता और उनको बोलता वॉक करो सर. वो होता है मेंटर. दैट्स व्हाट वी डू विद आवर स्टूडेंट्स. जो पूरा लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में. इफ यू वांट टू जॉइन दैट, करो ज्वाइन. मैं दोबारा टॉपिक पे आता हूं. नाउ लेट मी शो यू द पीपीटी अगेन. This is what the reality is. Now, can you imagine the emotional torment Rakesh Jhunjhunwala had to go through? क्या सोच सकते हो what all did he go through? क्या क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हुई होंगी. राकेश झुंझुनवाला didn't quit, but हम क्विट कर देते हैं. क्यों? ₹2 पर हमने बेच दिया. 5 से 50 पैसे नीचे आया, हमने एवरेज डाउन कर लिया. ये फैक्ट है. एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस टू यू होस्ट. आई एम 100% श्योर इफ यू इन्वेस्टेड यू डन दिस. और ये आपकी गलती नहीं है, ये हम सब करते हैं बिकॉज ये हमारा ह्यूमन नेचर है. In stock markets, this is what you need to become the best. इसको दोस्त रैंट मत समझना, ये रियलिटी चेक है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं. ये रियलिटी चेक है फ्रॉम अ रियल इन्वेस्टर, जो मैं आपको बता रहा हूं. आपको ये करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द रियल थिंग, जो आप किसी बुक में नहीं पढ़ पाओगे. अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. तभी आपको तो चलेगा इन्वेस्टमेंट क्या होती है. बोलना बड़ा आसान है, और यार उस समय इन्वेस्ट करते तो देखो क्या हो जाता, उस समय इन्वेस्ट. बोलना, आप करके देखो. आप एक काम करो, अभी इन्वेस्ट करो और आप खुद देखना आप उसको 2 महीने तक होल्ड नहीं कर पाओगे. अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर वीक हार्टेड. आई एम सेइंग दिस इज हाउ वी आर इमोशनली बेंट. और ना जो मैं आपको बता रहा हूं, इसकी फेमस कहावत है, ये जाना कि कुछ भी नहीं जाना, ये भी जाना मुद्दत के बाद. ये जाना कि कुछ भी नहीं जाना, ये भी जाना एक मुद्दत के बाद. इसका मतलब ये है कि एक आदमी ओल्ड एज में आके बोलता है कि ये जाना कि मुझे कुछ नहीं आता, और ये भी मैंने जाना आफ्टर द एंटायर लाइफ टाइम. I don't know if you will understand this or not. I don't know if you will appreciate this or not. I really don't have any idea. Because if you're an investor, you will appreciate this. If you have been through the thing, you will appreciate this. If you are new, I can imagine. आप बोलोगे हर्ष क्या मजाक कर रहे हो, क्योंकि हाँ हो सकता है बिलीव ना करो, that's okay. But trust me, बाद में जब भी आपके साथ ये एक्सपीरियंस होगा ना, आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे and you will yourself comment down, हर्ष ये मेरे साथ हुआ है and you have told me the truth. I am not going to give you information. I want to make sure I hold your hand and transform your bloody life. पढ़ो PPT. Several other people had invested in Titan company alongside Rakesh Jhunjhunwala. Rakesh Jhunjhunwala क्या अकेला था जिसने Titan में इन्वेस्ट किया? नहीं. There were several people alongside him. Why did not they hit multi-baggers? Where the hell are they? वो जो they है ना, they are normal investors like us. Those are normal investors like us. नीचे कमेंट करना बहुत आसान है, अरे यार हाउस चूपड़ ये कर लेते. ये रियलिटी है दोस्त. रियलिटी ये है. एक बार आपके अपने इमोशंस में कंट्रोल कर लिया ना, nobody can stop you from becoming the best in the world. इस पे फोकस करो. इस पे आपने ग्रास्प हासिल कर ली दोस्त, you will reach the stars. I'm being very honest to you. I'm being very real with you. ये ट्रूथ है टू फाइंड मल्टी बैगर्स. बहुत 3i फॉर्मूला, कैमल फॉर्मूला, वो सब तो कहीं भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लो एंड गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट टू. बट आपको चाहिए ये, क्योंकि 80% एफर्ट क्या है? होल्डिंग द स्टॉक.
Again, read this. Multi-baggers are created, not found. You have to become a multi-bagger your bloody self. Multi-baggers are created, they are not found. आप पिछले 10 साल में देख लो, हर चीज मल्टी बैगर हो गई है. ऑलमोस्ट एवरी सेकंड ब्लू चिप कंपनी इज अ मल्टी बैगर. वी आर सिटिंग इन अ कंट्री ऑफ इंडिया जो इकोनॉमिक सेंटर बन गया है वर्ल्ड इकोनॉमी का, एंड इट हैज सो मच पोटेंशियल दैट आई डोंट नीड टू टेल यू. आपको खुद पता है कितना पोटेंशियल है. दैट इज वाई यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स ना. तो चूज करना कोई बड़ी बात नहीं है. टू चूज अ कंपनी कोई बड़ी बात नहीं है. व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ सिस्टम, यू नीड अ मेंटर टू गेट बिहाइंड यू एंड यू टेल यू अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करना, उससे हिलना मत. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ प्रिस्क्रिप्शन, ये लो पेशेंस, ये सब नहीं देता मैं. आई एम गोइंग टू होल्ड योर हैंड एंड वॉक अलॉन्ग साइड यू. आई हैव 1 year 2 year old स्टूडेंट्स जो अभी भी हिचकिचा जाते हैं, जो दे विल थिंक नो आई शुड सेल, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट. दे नीड टाइम. यू ऑल्सो नीड टाइम. दैट इज वाई वी मेड अ लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम. लिंक में डिस्क्रिप्शन है, उसको देखो. अब मैं पीपीटी बंद कर देता हूं. ये है सच. दिस इज हाउ यू फाइंड अ मल्टी बैगर. वॉट ऑल डिड वी डू टूडे? एंड अगेन ये बहुत पावरफुल सेशन था. वॉट ऑल डिड वी डू टूडे? सबसे पहला, मल्टी बैगर क्या होता है, वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टी बैगर. देन वी स्टडीड अबाउट द प्रीवियस मल्टी बैगर्स, वी लुक्ड इनटू द प्रीवियस मल्टी बैगर्स. देन आई टोल्ड यू द सीक्रेट्स ऑफ मल्टी बैगर्स, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव जस्ट स्क्रैच्ड द सर्फेस. अभी तो मैंने बस सर्फेस स्क्रैच किया है, बहुत कुछ है जानने को. आई want you, if you want to be serious, if you actually want to become multi-bagger. और नीचे कमेंट सेक्शन में ये मत ना हो कोर्स बेच रहे हैं. हाँ, बेच रहा हूं मैं. बिकॉज इफ दोस्त यू आर सीरियस तो ज्वाइन करो. बिकॉज यू नीड अ लाइफ टाइम मेंटर. फ्री इंफॉर्मेशन में घंटा कुछ नहीं होने वाला है. पार्डन मी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, बट ये फैक्ट है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करो. वॉच दिस वीडियो अगेन, थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टोल्ड यू. थिंक अबाउट द सिचुएशन. राकेश झंझनवाला केस स्टडी है, ऐसी हजारों केस स्टडीज देखो ऑफ टॉप इन्वेस्टर्स. सी व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, व्हाई डिड दे इन्वेस्ट इन इट, एंड देन find out for yourself how do you find a multi-bagger. And if you want a lifetime mentorship program, if you want me, that Harsh, I want you standing behind my back and I want you to tell me that how will I find my multi-bagger, अगर मैं झुकूं तुम मेरे साथ खड़े ना. लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्त, ज्वाइन करो अभी. डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स का, ज्वाइन करो. वेल, दैट वाज इट फॉर टुडे. And I hope you like the video. काफ़ी intense हो गया video. And if again in the middle of the video you got offended, लगा कि Harsh you are shouting on me, अगर वो सब हो गया ठीक है, I'm sorry for that. मेरा intention नहीं था, because जब मैं emotion में आता हूँ तो मैं उनका फाड़ दूँगा मैं सब, right? So yeah, so this is how you find a multi-bagger, man. I genuinely hope you take it seriously, because ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सच है. मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, बट क्या करूँ, I will continue to repeat it. And if you like the video को like करो. Again, making such content for you is not easy. Because I don't even know what is the response going to be. मुझे लग रहा है कि हेट कमेंट्स ही आने वाले हैं. A lot of my team members thought कि सर इतना मत करो, बहुत हेट कमेंट्स आएंगे, बट दिस इज अ ट्राई. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो इफ यू लाइक द वीडियो, एंड कमेंट करो व्हाट डू यू थिंक. नीचे बताओ, हैव यू फेस दिस, डू यू रिलेट टू दिस, प्लीज नीचे बताओ. एंड इफ यू इन्वेस्टर, प्लीज टेल दिस टू अदर पीपल सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो नो, एंड शेयर दिस वीडियो विद पीपल सो दैट दे नो हाउ टू फाइंड द राइट मल्टी-bagger. दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.